اور ہم آج اسی بات کو تھوڑا سا غور کریں گے کہ خداوند کیا چاہتا تھا، کیوں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تو یہی کلمے کو پیش کر. تو پہلے میں 2 ورسز دوں گا. پہلے آپ نکالیے مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. کوئی بھی جو نکال لے پلیز میرے لیے پڑھے. نکالیے مکاشفہ پہلا باب اس کی 18ویں آیت. وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ آخری زمانہ میں ایسا ٹھٹا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بدبینی کی خواہشوں کے پہلا باب 18ویں آیت. میں مان گیا تھا ہاں جی. اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا تھینک یو. اور موت اور عالم نبوت کی کنجیاں میرے پاس. ہاں جی، اسے دماغ میں رکھیے اس ورس کو. میں اس کو پیچھے سے تھوڑا سا پڑھنا شروع کروں گا. میں اول اور آخر ہوں. ٹھیک ہے جی، پچھلی ورس کا بھی تھوڑا سا حصہ لے لیتے ہیں. میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا، اب دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے. کس کے تھرو کہہ رہا ہے؟ اور یوحنا کون ہے؟ جس نے اس کا حال سے تیری ماں یہ ہے. میں نے کہا تھا اس نے اپنی ماں کی فکر نہیں کی، کلیسیا کی فکر. اور آج بھی اسے کلیسیا کی فکر ہے. اور وہ یوحنا کے تھرو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ اب یسوع جو تھا وہ مر گیا تھا، زندہ ہو گیا. اب عالم روا کی کنجیاں بھی اس کے پاس اب تالا نہیں ہے. تالے کی انہوں دوڑ دی، کنجی اس کے پاس کافی ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سب مان میں رکھیے. سو ہم آج جو تھوڑا سا غور کریں گے، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ انسان کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے اندر ایک تو بدن ہے. ٹھیک ہے، دوسرا اس کے اندر اس کی ایک روح ہوتی ہے، اور تیسرا اس کے اندر دم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا کیا چیز ہوا؟ ایک تو انسان کو بھی جب بنایا اس نے تو اس نے ایسا ہی کیا. تو پہلے اس کے بدن بنایا، پھر اس کے اندر دم پھونکا، اور روح جو ہے اس کے اندر چلتی ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں مل کر چلتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کا دم نکل جاتا ہے. روح جو ہے وہ اپنے کردار تک پہنچ جاتی ہے. مثلا اس نے اچھے کام کیے ہیں تو عالم روا میں یا جہاں اس کی جگہ ہمیں چلی جاتی ہے. لیکن اگر اس نے الٹے سیدھے کام کیے نا تو وہاں سزا پائے گی. یہ ہے وہ کسی لیے کہتے ہیں کہ روح کو سزا ملنی ہے، بدن کو نہیں ملنی. ٹھیک ہے، اور بدن کیا ہے؟ یہ مٹی میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تینوں چیزوں کی جگہ بن گئی. یہاں پر جو ہم مسیح پر دیکھ رہے تھے کہ مسیح خداوند نے اب یہاں پر ایک مسئلہ اٹھا تھا کہ کیا ہوا. نکال لیجیے لوکا 24 باب 24 باب اور اس کی 22ویں آیت. بتیس آیت، سوری 32. ہاں جی. وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا. بس یہاں پہ چھوڑ دیجیے. کون آگے کھڑا ہو گیا؟ اب اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یسوع نے صلیب پر جان دے دی. اس نے لما شبقتانی، اے خداوند، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور پھر آخری کلمے میں اور اس کے بعد کے کلمے اس نے کہا، اے خداوند میں اپنی روح کس کو سونپ دی اس نے؟ اچھا اب دیکھیے، تھوڑا سا غور کیجئے. صلیب کے اوپر مسیح خداوند ہے، اس کو دیکھیے. اور اس نے روح جو ہے کس کو سونپ دی ہے؟ اور یہ کہہ کر، جی ہاں، اب اس کی جو باڈی ہے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، دم نکل گیا. اس کو بڑا آپ جتنا غور سے سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جو بھی یہاں ہیں سب سمجھ کے جائیں جو میں نہیں خدا جو چاہتا ہے. تو کیا ہوا وہاں پر
तो क्या हुआ कि उसने रूह जो है किसको सौंप दी? खुदावंद को सौंप दी, और बदन उसका अब नीचे रह गया है, ठीक है। और बदन जो है कहां है? सलीब पर है। अभी निकालिए लूका 51 24 बाब की 51 वर्ष को पढ़ते हैं। जब वो बरकत उसको यहीं से छोड़िए, थैंक यू। अब जब वहां पे वो हैंग किया हुआ है और उसका दम समझे कि निकल गया है और सिर्फ बदन रह गया है, ठीक है। अब बदन को नॉर्मली क्या होता है कि उसको कहां डालते हैं? जमीन में डाल देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो जैसे कि लाजरस के बारे में हम देखते हैं कि लाजरस को चौथे दिन जब वो उसकी बहनें और यीशु गए वहां पे, तो उसने कहा कि पत्थर को हटाओ, तो उसकी बहनों ने क्या कहा? उसमें से बू आती हो। यानी कहने का मतलब है कि तीसरे चौथे दिन जो है वो बॉडी में से जो जिस्म है उसमें से बू आनी शुरू हो जाती है, और क्या होता है कि उसको आके कीड़े खाते हैं। चंद महीनों के बाद सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, और एक वक्त वो हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं। तो ये बॉडी का हाल होता है, किसका? जिस्म का। रूह चली गई हुई है उससे, ठीक है। और बदन जो है वो उसके अंदर होता है, और उसका जो है जो बुरा हाल होता है वो हम लोग सब जानते हैं कि उसका बुरा हाल हो जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जिस्म वहां रह जाता है। लेकिन यीशु के साथ क्या हुआ? उसने जब अपनी रूह सौंप दी, रूह चली गई, और अब सिर्फ बदन रह गया है। और बदन का क्या है? ये अगर आप निकालें मत्ती 28 बाब और 50 से 53 वर्ष को प्लीज पढ़िए। 28 बाब आप इसको कलमे के तौर पे ना पढ़ें। आप ये मत सोचें कि आज आप वो कलमा सुन रहे हैं, बल्कि ये देखें कि इसका रिएक्शन देख रहे हैं। जो उसने कलमा कह दिया उसके साथ क्या हुआ, ये 33 पेज पर है दिखा में। और यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा। पहले क्या हुआ है? जैसे ही उसने जान दी है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, ये आम आदमी की मौत नहीं हुई है। लोग आम आदमी की मौत समझ रहे हैं कि बंदा मर गया, खत्म हो गई कहानी, हो गई बस, चलो पोस्टमार्टम करो, दफना दो। ऐसा नहीं है, बल्कि ये लोगों की नजर में आम आदमी है, लेकिन हमें आज जो समझ आ रही है वो आम आदमी नहीं है वो। तो क्या लिखा है? पहली बार मकदस का पर्दा। मकदस का पर्दा। अब मरियम मसीह खुदावंद एक बड़ाई का बेटा है, हैकल जहां पे कोई बंदा जा नहीं सकता, उसका पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, दो हिस्से हो गए। मेरे अजीजों, ये कैसी मौत है? अभी तो सिर्फ मौत हुई है रूह का। थोड़ा सा देखिए, अभी रूह ने बदन को छोड़ा है बस, अभी सिर्फ उसने कहा आए बाप, अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये कहकर दम दे दिया। जैसे ही चिल्ला कर उसका कहा, उसका दम निकला, और है एक अजीब रिएक्शन हुआ। आज मैं कलमे पर नहीं बोल रहा हूं, बल्कि जो हुआ मैं उसको बताना चाह रहा हूं आपको, कि जो उसने अदा कर दिया, उसका जो अमल आया, जो उसका रिएक्शन हुआ, वो उसमें मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा गौर करें। और वो क्या हुआ? पहली बात है कि ऊपर से नीचे तक पर्दा जो है, क्यों? कोई आइडिया है? इंसान और खुदा के दरमियान तक दूरी। वेरी गुड आइडिया। हाँ, वेरी नाइस। इसलिए क्योंकि जो फासला खुदावंद और इंसान के बीच में था, वो उस वक्त यीशु मसीह ने कुर्बानी देके खत्म कर दिया, रास्ता सीधा कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इससे एक और मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ देता हूँ। निकालिए इब्रानियों 10 बाब उसकी 20 वर्ष को निकालिए। ये पर्दा है क्या? आज आपको मैं बताता हूँ कि पर्दा क्या है। वो जो पर्दा लगा हुआ था वो है क्या, वो क्यों फट गया? ये जो बीच में हैकल के जिस तरफ जो है लोग आते हैं, खड़े होते हैं, उस तरफ पाक मुकाम है, वहां पे सिर्फ काइन एक दफा ब्लड लेके जाता है, ठीक है, ठीक है। और बीच में एक पर्दा है। ये पर्दा क्या है? पढ़े जो भी निकाले। और जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से वो पर्दा फिर ऊपर से पड़ गई।
ये वर्ष बहुत प्यारी वर्ष है, बड़ी इसके अंदर छुपी हुई है एक चीज। और ये जरा दोबारा, पसाए भाइयों, क्योंकि हमें यीशु के खून के सबब से, यीशु के खून के सबब से नई और जिंदा राह से पाक मुकाम में, एक यहाँ पर ये जिंदा और नहीं राह वहाँ एक, लेकिन बंद हुई है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा टच कर दूँ, राह हक और जिंदगी में, ठीक है। आगे बढ़िए। जिंदा राह से पाक मुकाम में दाखिल जिंदा राह से पाक मुकाम में जाने की दिलेरी है, लेकिन दिलेरी है नहीं, जा नहीं सकते आप, क्योंकि आगे लगा हुआ। और वो क्या है पर्दा? जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमें गुजार दिया, हमारे वास्ते मखसूस किया। समझ आ गया आपको? वो पर्दा इसलिए फट गया कि यीशु ने आपको अपने अंदर से गुजारा है। वो पर्दा यीशु खुद था। वो जो हैकल में पाक तरीन मुकाम में जाने से पहले एक पर्दा था, वो पर्दा यीशु था। और आज जब वो अपने लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो ऊपर से, ऐसा नहीं कि नीचे से फटा हो, ऊपर से वो आया था और नीचे तक फट गया। वो पर्दा यीशु था। वो इकरार कर, मैं नहीं कह रही, कलाम कह रहा है आपको। इसलिए पर्दा जो था, यू अंडरस्टैंड young generations, that curtain was the self Jesus, because he was hanged for us and he gave the way from through the curtain. So curtain को जब आप हटाते तो उसके अंदर से गुजरते हैं ना, इसलिए यीशु के आपको पाक मुक्ति मुकाम में जाने के लिए यीशु के अंदर से गुजरना पड़ेगा, इसलिए वो फट गया। क्लियर हुआ? अभी सिर्फ पर्दे में हैं और अभी सिर्फ यीशु के नेक जान की है, अभी सिर्फ रूह और उसका सेपरेशन हुई है। और पहली बात क्या कहता है कि मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो हिस्से हो गया, ताकि ये नहीं कि थोड़ा जो हो जाता है सिद्धार्थ करके तो को जिंदगी नहीं, ऊपर से नीचे तक फट गया और दो हिस्से हो गया। आप आजाद हिस्से बनकर जा सकते हैं। हमें किस में से गुजरना है? यीशु में से गुजरना है। हालेलुया। जब हम खुदावंद के पाक तरीन मुकाम में दाखिल होते तो किसके? मेरे बगैर कोई बाप के पास। हालेलुया। राह हक और जिंदगी, ये उसने साबित कर दिया, उसने ऑथेंटिक साबित कर दिया कि आपको जब तक आपके दरमियान में पर्दा है, आप वहां जा नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते। घंटियां सुन सकते हैं कि अंदर जड़ा काहे लोग फिरंडे है, जिंदा है, देख नहीं सकते, लेकिन उसने पर्दे को ऊपर से नीचे कर दिया। वो पर्दा यीशु था, उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया। जब उसने कुर्बानी आज कबूल हो गई, पूरी हो गई, तो पर्दा हट गया। ये पर्दा बागेत में कायम हुआ था शोला जंदरवार के साथ, ताकि उस हयात के दरख्त के पास पढ़ना हो तो बाद में घर में जाकर पढ़ लीजिए। लिखा है कि जब उन्होंने गुनाह किया तो उनको बागे एडन से बाहर निकाल दिया और एक शोला तलवार उस जिंदगी के दरख्त और उसकी राह की हिफाजत करती थी। राह कौन है? यीशु है। राह हक और जिंदगी मैं हूं, और उसके अंदर से गुजरना पड़ता है। और वो शोला तलवार वहां पर कायम थी, और आज वो जिंदगी के दरख्त के सामने आज भी थी जब, लेकिन जब यीशु आया तो सब फट गया। अब वो कहता है मैं उनको जिंदगी के दरख्त से फल खाने को दूंगा। हालेलुया। ये था पर्दा। अभी तो सिर्फ पर्दे की बात है, आगे चलते हैं। आगे पढ़िए जी। जमीन लर्जी, जमीन की लर्जी, दो बातें इसके अंदर, और जो ऑथेंटिक है वो ये है। पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि जमीन इसलिए लर्जी कि उस जिस्म को वो कबूल नहीं कर सकती। वो बदन क्या है? मुक़द्दस का बदन है, वो लर्जी। लेकिन ऑथेंटिक उससे ज्यादा है कि जमीन गुनाह के सबब से लानती हो गई थी, और उसने उसकी भी लानत अपने ऊपर ले ली, क्योंकि मौत खत्म हो गई। इंसान में कहता है ये जमीन वो चीज है जिसका पेट नहीं भरता, कहती और मुर्दे लहंदे जाओ तो मैं खाली जाऊं। लेकिन आज जमीन लर्जी, क्योंकि आज वो जानती है कि मौत खत्म हो गई। अब मैं, और इसका मैं सबूत आगे चल के थोड़ा सा दूंगा। आगे चलिए जी। चट्टाने तिड़क गई, सख्त से सख्त चीज टूट गई। आज जितने सख्त दिल थे वहां कायन और वो भी परेशान हो गए। वहीं पर फौजी कहने लगे ये बेशक खुदा का बेटा है। बादशाह
मूसा ने अपने हाथ धो लिए कि अल्लाह मैं तुम्हारे खून से पड़ गई, चट्टानें तिड़क गई, चट्टानें तिड़क गई। और आगे क्या लिखा है? कब्रें कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। सिर्फ खुली नहीं गई बल्कि अंदर से कौन? बहुत सी मुकद्दसीन जो सो रहे थे, क्योंकि आज कब्र को कंट्रोल कर नहीं सकते मुकद्दसों को। अभी तो सिर्फ मुकद्दसों की बात हो रही है, यीशु को कौन कंट्रोल करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कब्रें खुल गई, लेकिन एक बात वहां पे एक बात रही है, मुकद्दसी कि बहुत से लोग उसमें से निकल आए और शहर में नहीं, लेकिन उस वक्त तक दिखाई नहीं दिए जब तक मसीह जिंदा था, क्योंकि वो पिलोटा है। आगे पढ़ लीजिए, अभी पढ़ दीजिए प्लीज। और कब्रें खुल गई है, बहुत से जिस्म उन बच्चों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकल कर मुकद्दस शहर में गया और बहुतों को दिखाई दिया। उसके जी उठने के बाद कब्रें खुल गई, उसी वक्त वो बाहर भी आ गए, लेकिन दिखाई नहीं दिए। इसलिए दिखाई नहीं दिया कि यीशु लौटा है, मुर्दों में से जी उठने में लौटा कौन है? और वो जो मुकद्दसीन की वो उठी थी, वो दोबारा नहीं मरी, वो खुदावंद के पास चली गई आलबेरवा में, और वहां से खुदावंद ने उन्हें प्रीचिंग की और उन्हें साथ ले लिया। हालेलुया। कब्रें, ये सारा मैं कलबे पे नहीं जा रहा हूँ, दोबारा मैं कहता हूँ आपको, ये रिएक्शन हो रहा है, अमल जो हो रहा है। बंदा मरता है ना तो अमल शुरू हो जाता है, और कितनी प्रॉपर्टी है वो संभालो पाए, एक वकील के बाद दौड़ता, दूसरा कब्रिस्तान दौड़ता, तीसरा ये अमल शुरू हो जाता है। यहाँ पे अजीब सा अमल शुरू हो गया और कब्रें खुल गई। और क्या हुआ? बहुत से लोग मुकद्दसीन जो सो चुके हैं, जिन्होंने कब्र दबा के बैठी हुई थी, आज क्या है? कब्रें को कंट्रोल न कर, कब्रें खुल गई और वो वहां से निकल आए। बहुतों को उसी के जीवन के बाद दिखाई दिए। मेरे अजीजों, ये वो अमल है जो सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा कि उसने ये कहा, क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये क्या कर दाम दे दिया। अब हम आते हैं उसके बदन पर। ये तो अमल हुआ है, उसका बदन का क्या होता है? जैसे मैंने पहले बात किया कि उसको क्या किया जाता है, लाश को रख दिया जाता है, और 30 दिन की औरतें भी गई कि चलो बू आ रही होगी तो जाके वो लाएंगे, ठीक है। और ये अब प्लान कर रही है कि हम जाके यीशु को देखें, ठीक है, और यीशु को खुशबूदार चीजें लगाएं। मेरे अजीजों, ये वहां जाती हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर आप देखें लूका 24 बाब और उसकी 22वीं आयत, हाँ जी निकालिए किसी ने, ये सफा 80 पर है। वहां लिखा है कि जब वो चंद औरतें और हम में से चंद औरतें भी ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे कब्र पर गई, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि रोया में फरिश्तों को भी देखा है। एनीहाउ, देखा क्या उन्होंने? वहां पर यीशु की लाश नहीं देखी उन्होंने, यीशु की लाश ही गायब हो गई। उन्हें तो चाहिए ना वहां पे लाश, शख्स तो बेचारे ने तपड़ नहीं होना था कि जाकर उन्होंने चोरी कर लिया, ठीक है, तो लाश कहाँ गई? लाश गायब हो गई, ठीक है। अब यहां सवाल एक पैदा होता है, अगर हम इसी को हमने देखा है लूका 24-22 को हमने देखा है, तो हम देखते हैं कि वहां ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आता है? कफन ही नजर आता है। अगर आगे पढ़े तो वहां पे लिखा है सिर्फ कपड़े नजर आते हैं, कफन ही नजर आता है, यीशु की लाश नजर नहीं आती है। और ये लाश कहां गई? ये देखिए अब लूका 24 बाब 36 आयत को इसी के साथ ही है। वो ये बातें काली रहती है कि यीशु आप उनके बीच में यीशु आप उनके बीच में ये लाश है। मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाह रहा हूँ, और बड़े आपको मजा आएगा इसको समझने में कि लाश तो कहाँ होनी चाहिए, और ये कहाँ है? उनके दरमियान। आगे पढ़ेगी। और उनसे कहा
कहा तुम्हारी सलामती हो। वो उस रूटीन के मुताबिक जैसे हम लोग शुरू करते हैं हालेलुया कहते हैं, आपको मेरी हर रूटीन का पता चल चुका है। 5 साल से मुझे देख रहे हैं और यीशु को भी 3.5 साल से वो देख रहे थे। वो हमेशा कहता था तुम पे सलाम तुमको देखा ही नहीं, क्योंकि हालांकि आगे जाके वो कहते हैं शायद ये कोई रूह है, आगे पढ़ेगी मगर उन्होंने घबराकर खौफ खाकर ये समझा ये कोई रूह है ये। देखते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कोई मसीह तो मर चुका है, ठीक है, ये कोई रूह है। ईमान डामाडोल हो गया, आगे बढ़ेगी। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो? पढ़े। और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ। उनको शक पैदा हुआ कि यीशु तो मर गया, वो तो धुना आया और ना मोर भी लाई हो तो धुना शुरू नहीं कर सकता। हाँ जी आगे पढ़े। और मेरे हाथ में पाँव देखो, यहाँ मैं ही हूँ। मेरे हाथ और पाँव देखिए, मैं ही हूँ। गौर से मेरे लफ्जों पर गौर कीजिए, जो कलाम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ही। डॉक्टर दीप समझ गए मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ। जाओ मूसा से कहो कि वो मैं ही हूँ। मैं हूँ वो हूँ जो मरता नहीं, मरे तो जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र यीशु। और यहाँ पे क्या हुआ? लाश नहीं बल्कि यीशु को मौजूद है वहाँ पे। रूह नहीं बल्कि इंसान मौजूद है, यीशु का बदन मौजूद है। और उसने कहा ये देखो, आगे बढ़े। हाँ जी, मुझे छू कर देखो, मुझे छू कर देखो। यूहन्ना कहता है उसे हमने देखा, बल्कि गौर से देखा, उसे छू कर देखा। आगे बढ़िए जी। क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते, जैसा मुझ में देखते हो। क्या हम प्रेज और एक कीजिए। हाँ, कितना मजेदार बात है, ठीक है, कितनी मजेदार बात है कि यीशु को वो मरे हुए को छोड़ा है वहां, और अब ये देख रहे हैं कि शायद ये रूह है। मैं भी सोचता हूँ रूह है, और हमने देखा था उसने रूह कहाँ सौंप दी थी, और ये क्या था, और बदन आया हुआ सामने कब्र में से निकल कर। वहां पे सिर्फ कपड़े उसके पड़े हुए, और ये एक अजीब रूह है और बदन है। चिल्लाली जिसे कहते हैं, आप कहेंगे क्या ये बदन? चिल्लाली बदन है। इसने क्या किया, जब उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा ये तो रूह है, तो उसने कहा मुझे छू कर देखो। रूह और के बदन और हड्डी नहीं होती, गोश्त नहीं होता, मुझे छू कर देखो। आप आगे पढ़िए। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ अपने हाथ दिखाए उसे। ये देखो मेरा जख्म देखो, मेरा जख्म देखो, मेरा हड्डियां देखो, ये सब कुछ देखो। आगे चलिए जी। जब मारे खुशी कि उनको यकीन आया और तवज्जो करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे खुश हो, कभी कभी हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता। यहाँ पे शागिर्द इतने खुश हो गए, अभी भी कुछ उनको शक है। फिर उसने एक बात कही, तो उसने उनसे कहा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? प्रेमी है। हालेलुया। उसने कहा कि इनको यकीन नहीं आया, मैं जानता हूँ। उसने कहा कुछ खाने है तुम्हारे पास, और उन्होंने क्या किया उसको? उन्होंने उसे बुनी हुई मछली का हालेलुया, और उसने खाई। रूह जो है वो खाती नहीं है, लोगों का सर खाती है, परेशान करती है, दुख देती है। लेकिन ये उसने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ताकि यकीन है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक है, मेरे हैंड और एवरीथिंग इज ऑलराइट। जब हम चीज खाते हैं ना तो हमारे सारे सिस्टम काम करते हैं। डॉक्टर साहब, सेंस काम करती है, सोचने की, खाने की, टेस्ट की, हर पूरे सिस्टम जितने हमें 9 सिस्टम हैं जितने, वो सारे काम शुरू कर देते हैं। उसने ये साबित कर दिया ये सारे सिस्टम मेरे काम करते हैं, मैं सिर्फ रूह नहीं हूं बल्कि वो ही मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं आप दरवाजे से डाल दूंगा। उसे साबित कर दिया, उसने मछली खाई उनके सामने। वो देख रहे होंगे शायद अंदर मैक्स की तरह हमें नजर आएगी मछली, क्योंकि ये रूह है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि उसे खाई और इस साबित कर दिया कि मैं। हालेलुया। ये वो बदन है, ये बदन है। ये कौन सा बदन है? ये जलाली, रूह कुदरत की, कुदरत का बदन है, ठीक है। ये आम बदन नहीं है। एक आम मसीह नहीं मरा, बड़ेगा बेटा मर गया दफना दे, ये ऐसा है नहीं ना। ये तो खुदा का बेटा है। हालेलुया। और उसके बदन में एक गजब
अब ये आया कैसे था? आपको थोड़ा मैं पीछे ले जाऊं तो ये जलवे सिर्फ 2 या 3 दफा पहले मसीह खुदा ने दिखाए थे। पहाड़ में उसकी शक्ल चेंज हो गई, ठीक है, एक दो जगह, और एक दफा उसकी ताजपोशी करने लगा तो वो निकल लिया चुप करके वहां से। लेकिन इस बदन ने पहले ये करामात नहीं दिखाए जो आज ये बदन दिखा रहा है, ठीक है। तो इस बदन ने क्या किया? मछली खाई, और मछली खाकर उनको दिखाया कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करता है, मेरे सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, मेरे हाथ और पांव देखो मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझे देखते हो। तो ये कहकर उसने उनसे हाथ और पांव दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। ये है उस बदन, वो जो बदन यीशु को हासिल हो चुका था, जिसे दुनिया वालों ने मसलूब किया, जिसे दुनिया वालों ने हैंग कर दिया। जब उसने कहा यार फिनिश, तमाम, तो शैतान ने नारा लगा, ओ वो पिघल गई कहानी, फिनिश हो गया, यीशु बात ठीक है, हम जीत गए। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शैतान फिनिश हो गया, शैतान शर्मिंदा हो गया। विनर कौन हो गया? हमारा यीशु हो गया। हालेलुया। और उसने क्या कहा? मेरे हाथ और पांव देखो मैं ही हूं। मेरे अजीजों, ये है उस बदन की खूबी। रूह तो उसने सौंप दिया, दम उसका निकल गया, और बदन में ये खूबी है। मेरे अजीजों, अब मैं चाहता हूं आगे इसी की अगर हम देखें 51 वर्ष इसी बात लूका 51। जब उन्हें बरकत दे रहा था। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ कि उनको साथ कहाँ लेके गया? पहाड़ पे ले गया और उनको बरकत दी। हाँ जी, अब आप आगे बढ़े। ऐसा बर्तन से जुदा हो गया और आसमान पर उठाया। हाँ जी, वही बदन, वो उनको साथ लिया उसने। अब उनको पूरा यकीन हो गया कि यही है वो, हाँ खुदावंद है, ये जो मरा था अब जिंदा हो चुका है। और उन्हें वो कहाँ लेके गया और जाकर उनको बरकत दी, और फिर आसमान पर उठा लिया गया जिंदा। जो मैंने पहले आपको पढ़ाया मुकाशफा में, मैं मर गया था अब, और अब दोबारा जिंदा होऊंगा। अब मैं मरने का नहीं हूं, मैं बार बार तुम्हारे लिए सलीम नहीं चढ़ूंगा, बार बार मैं मौत को दोबारा नहीं करूंगा, बल्कि अब दोबारा जिंदा रहूंगा और मैं कभी नहीं मरूंगा। अगर आप इसी तरह एक और हवाला देख लें, मुकाशफा 22 बाब उसकी 12 में, बड़ी अच्छी वर्ष है ये भी। मुकाशफा 22 बाब उसकी 12 में है। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ये अब यही बदन लेकर आसमान पर चला गया, ठीक है। और ये किसके थ्रू बात हो रही है? यूहन्ना के थ्रू, जिसे उसने कहा आज से तू कलीसिया का बेटा है और कलीसिया तेरी माँ है, और उसका सारा बात वो उसके मुंह से निकलवा रहा है। और क्या कहता है? और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हर एक के काम के मुताबिक, मैं सलीम दोबारा नहीं जाऊंगा, हर एक के अजर के मुताबिक मैं हिसाब करूंगा। आगे ये बहुत वर्ष है, पढ़िए जी भाई जी। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और आगे जी पढ़िए। अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। खत्म हो गया। अल्फा, ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। इसका मैं सबूत आपके सामने पेश करूं। निकालिए पहला पैदाइश, शुरू करते हैं। पैदाइश पहला बाब पढ़िए। अव्वल, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा, पहले नाम किसका आया है? तो किसने बनाया? थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लीजिए, आगे पढ़िए। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुबिश कर। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी की सतह पर पानी होगा, वाला पानी नहीं सी। पानी कौन है? रब का कलाम है, और कलाम उस वक्त मुजस्सम हुआ, ठीक है। इब्तिदा में, सॉरी, खुदा से शुरू हुआ है। अव्वल
मैं इब्तदा हूँ, मैं इंतहा हूँ। इंतहा को देख लीजिए, आखिरी बाब की आखिरी वर्ष को पढ़िए, मुकाशवा 22 बाब की आखिरी वर्ष को पढ़िए। मैं अव्वल में चल के अब हम इंतहा पे जाते हैं। क्या लिखा है वहां पे? खुदावंद, फिर खुदावंद आता है और क्या उसने कहता है? वो हमें नहीं कहता। पढ़िए दोबारा बेटा। प्रेज द लॉर्ड। वो खत्म नहीं हो जाएगा। उसने कहा कि खुदावंद यसू का फजल, खुदावंद और उसका फजल उसके मुकद्दसीन तक के साथ रहेगा। मैं अव्वल और आखिर हूं। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। ये हमारे सामने सबूत एक मौजूद है। और उसने कहा आखिर में शैतान को भी, और कुजिया, मौत की कुजिया किसके पास है? जानलेवा की कुजिया किसके पास है? यीशु के पास है। उसके पास आशा है, उसके पास कंट्रोल है। सॉरी मेरी आवाज से मेरा और कंट्रोल किसके पास है? यीशु के पास है। आखिर में विनर कौन होगा? यीशु होगा। वो बात मैं रिपीट करता हूँ जो एक दफा रियाज साहब के घर में कोई बात हुई थी कि शैतान शायद हमें तौबा कर रहा है। शैतान तौबा कर ही नहीं सकता, तो क्या करेगा? ठीक है, विनर कौन होगा? खुदावंद होगा, क्योंकि ओमेगा, अल्फा और ओमेगा वो है, अव्वल आखिर वो है, इब्तिदा और इंतहा वो है, दरमियान में जो भी है वो हम सब है। जो मर्जी होता रहे, आखिर विनर होगा। ये था उस बदन। और आप इस बात को जानते हैं कि दोबारा जब वो आएगा तो कौन सा बदन में आएगा? जलाली में आएगा। ये वही जलाली होगा जिन्हों मिंटरी लग जाते हो थे, मिंटरी लग जाते हो थे तुम। अगर सलीब पे खड़ा है तो नीचे हमारी भी सपोर्ट किया जाता है। कब्र में होता है तो हमें बरकतें दिए जाता है। सलीब पे होता है तो निजात दे देता है, फरदौस में जगह दे देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई क्वेश्चन? मजा आया? मैं यकीन जानिए मैं बहुत खुश हुआ। शाम को थोड़ी सी मुझे जब खुदावंद ने मुझे कहा और मुझे मिला मैसेज, मैं बहुत खुश हुआ। खुदावंद तो जब देता है, कहता है तो देता भी है। मुझे खुद ये नया मैसेज था, खुदावंद ने मुझे दिया, मैंने आप तक दिया। अब खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आज सब कुछ थैंक यू। भाई आज से दरख्वास्त करूँगा वो खड़े हो और मैं ले दुआ करें सारी किसी के लिए आज के कलाम के लिए। थैंक यू। तू जो हमें देता है, तू जो हमें प्यार करता है और तू जो हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है, तो हम खास दुआ करते हैं उनसे के लिए और के साथ के लिए और गहराई में ले जा खुदावंद, उनकी बड़ी बरकत दे खुदावंद, उनके खानदानों पर तेरी खास बरकत हो, घर पर तेरी खास बरकत हो, इस हिस्से के मजमा पर तेरी खास बरकत हो, इस गिरते घर पर तेरी खास बरकत हो। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज के दिन सलीब पर खुदावंद मौत और फतह पाकर खुदावंद तूने हम सब के गुनाहों को धो दिया और अपने लहू से हमें पाक कर दिया, ताकि खुदावंद हम उस जिंदगी में शामिल हो जाएं जो तू हमें देता है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। एक गीत गाते हैं, उसके बाद आपका हम गाएंगे। बेटे क्या गीत है इसका? कल इसी को गाते हैं। ये कौन सा नंबर जरा देखिए। हाँ जी, गाएं यीशु के नाम में। 290। Thank
फरमाइश है, अगर आप लोग इससे भी आप लोग इंजॉय करें, और वो है खुदावंद हालेलुया, खुदावंद अपने लोगों में वो जब आएगा तो जलाली बदल के साथ आएगा और आपको अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद चलो ये नंबर है 344 Hallelujah.
पहले कौन सा ज़बूर था? 136 शुक्र यहोवा दानी ये जो है हमारी कलीसिया का बड़ा अक्सर ही हम सिखाते हैं। Praise the
जगनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना चर्च में लोगों को ठंड लगती है क्योंकि वो जोश नहीं आता, और जब तक जोश ना आए आपको जो है जिस्मानी बरतों से आप फैज़याब नहीं हो सकते। आखिर में मुझे नहीं पता माँ बाप की क्या ख्वाहिश है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि बच्चों को यहाँ मिलाएं, हम उनके लिए दुआ करेंगे, दोनों बच्चों को। और मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर साहब और जो लोग भी आना चाहिए आए, हम मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे, उनके लिए ब्लेसिंग चाहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah, thank you. Hallelujah. Play us up. हम इनके लिए बरकत चाहेंगे दोनों बच्चों के लिए। पहले सैमुअल के लिए, सैमुअल छोटा है। हाँ जी, ये टेस्टामेंट तो खुद ही दो तो अच्छा लगेगा। सैमुअल का जो नाम है वो जब बिशप साहब आए थे इस चर्च के, तो बिशप उन्होंने प्रेयर की थी मेरे ऊपर और आसमां के ऊपर, और दैट वाज द फर्स्ट कपल मंथ्स, और उन्होंने कहा था कि ये लड़का है और खुदा ने कहा कि इनका नाम आपने सैमुअल रखना है। इस तरह से हाँ, उन्होंने कहा कि do you want to know what it is, girl or boy? No, he asked me, do you know what you are having? And I said, no, I don't. Then he said, do you want to know? Because God has told me. So I said, okay. And then he said that you are going to have a son. So we didn't find out in the ultrasound. So we just left it on God, you know, whatever he हम ये छोटा है, बड़ी है, ठीक है? हम इसके लिए दुआ करें पहले। हम आप सब लोग सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र करता हूँ, तारीफ करता हूँ, तुझे धन्यवाद करता हूँ, सराहता हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। बासमानी क्या है खुदावन, तूने मुझे इस काबिल बनाया, क्या है खुदावन, इन बच्चों को जो तूने मिरास के तौर पर इस खानदान को नहीं बल्कि अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को और अपनी कौम को बख्शा है। इस बेटे को आए खुदावन तेरे यीशु नाम में जो तू पहले मसा कर चुका है, उसके लिए बरकत मांगता हूँ बासमानी, इसके लिए, इसके खानदान के लिए, इसके लोगों के लिए, इसकी कौम के लिए आए खुदावन तू उसको मसा कर दे बासमानी। आने वाले वक्त में बासमानी तेरे बंदा सैमुअल की तरह खुदावन ना सिर्फ कहानत करे बल्कि तेरे नाम का दावा देने का, प्रचार करने का वसीला बने बासमानी, बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का वसीला बने। कोई दुनियावी ताकत रुकावट है खुदा उसके हायल रास्ते में हायल ना हो, बल्कि खुदावन ये बढ़ता जाए जिस तरह सैमुअल आए खुदावन खुदा और इंसान दोनों की नजर में मकबूल था, इसी तरह खुदा बड़े तरक्की करे और तेरे नाम को चलाते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आए खुदा इसके खानदान के लिए, माँ बाप के लिए खास बरकत मांगता हूँ बासमानी, इनको तू आए खुदा अपना दानिश फहम समझ दे, ताकि इस मिरास की जो तूने उनको बख्शा है इसकी परवरिश तेरी शायान शान तेरी मर्जी के मुताबिक करेगा बासमानी, ताकि खुदावन ये जो काहिनों का फिरका है बासमानी शहाना तौर पर बड़े तरक्की करे और तेरे नाम को चला दे। आए खुदा तेरा ये सुनाम चला पाए, इस सबको तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा उसी के रिश्ते से मगर सुन पूछते। मैं दरख्वास्त करूँगा सिस्टर साहबा से क्या पाएंगे। कदूस रहीम जलाल खुदा, तेरा जो है जो आने वाला है तेरी कुदरत बेअर्श है खुदा, तू हम सबको प्यार करता है खुदा, तूने हम सब की खातिर है खुदा स्लीपी और लांती मौत को बनाया और है खुदा हमको हमारे गुनाहों से निजात दी। और आज के दिन है खुदा जिस तरह हमने तेरे गम के पीरियड को महसूस किया है खुदा, आज उस खुशी को एक एक रूह एक एक जान महसूस करती है जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं खुदा। शुक्र करते हैं कि तू हमारी खातिर आज जिंदा मुर्दों में से जिंदा जी उठा है खुदा।
मैं खुदा बाप का शुक्र करती हूँ कि तूने इस खानदान में इस प्यारी सी बेटी दी और खुदा बाप इस बच्ची को मेरे अपने हाथों में देती और तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा बाप इस बच्ची का बचपन से लेके जब तक भी खुदा बाप तूने इसको ज़िंदगी बख्शी है खुदा बाप इसका एक एक कदम पर इसका मुहफ़्ज़त और निगरान है खुदा बाप इस बच्ची को अपने नाम की खातिर इस्तेमाल करना इसको बुरी नज़र और बुरे इरादों से बचा के रखना माँ बाप को दिलो दिलाई है खुदा बाप ये रूह तूने उन्हें सौंपी है तो खुदा बाप को सही तरीके से इस बच्ची को की परवरिश करें जिस तरह से ये दुनिया भी सोचो समझ में बढ़ती चली जाए खुदा बाप इसी तरह वो तेरी हुजूरी में भी इसको खुदा बाप पूरी तरह से लाएं और खुदा बाप ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए खुदा बाप बायस इज्जत हों खुदा बाप हमारी इस मिन्नत को पूरी जमात की तरफ से खुदा बाप तेरे मज़हबा के पास लाती हूँ और उम्मीद करती हूँ और मान लेती हूँ खुदा बाप कि तूने हमारी मिन्नतों को सुना और कबूल किया और हमें बख्श दिया इन बच्चों को ज़िंदगी और सलामती दे सेहत और तंदुरुस्ती दे सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा को मसीह के वसीला से इस फैमिली में अगर ये एक जो for you people, their brother and sister, okay? आप लोगों को तो सबको ज़्यादा पता ही है, सबको ही पता है। अब अगर दादी कुछ कहना चाहती है तो मैं बुलाता हूँ, दादी यहाँ आ जाएं। अगर इस खुशी के मौके पर वो कुछ भी कहना चाहती है, वेलकम। और अगर वो नहीं कहती तो फिर डॉक्टर प्रदीप को तो कुछ बोलना ही नहीं। मैं जानता हूँ कि वो बहुत खुश हैं, ये खुशी की बात भी है। उन्होंने जो जिम्मेदारी बाप की तरह की है, मैं समझता हूँ कि गॉड विल ब्लेस। वो कह रही हैं आप ही बोलेंगी। मेरे अज़ीज़ों, हमें कलाम में इस बात के लिए ख़ास कहा भी गया और मेरे ख्याल से इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हमें किसी चीज़ की गवाही देनी चाहिए, हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और मैं इस बात की गवाही देता हूँ। मैं इस बात को एक नहीं 100 मरतबा इस बात का इकरार करता हूँ कि खुदावंद ने सब इंसानों की ज़िंदगी में बड़े काम किए, लेकिन ख़ासकर हमारे घर में अम्मी, मैं, बबलू, शाजिया और मेरी बहन, हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में खुदावंद ने बहुत काम किया, हालेलुया, बहुत बरकतें दी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, गवाही ये नहीं है। गवाही ये है कि हमने खुदावंद का नाम लिया और उसने कहा कि तुम मेरा नाम लोगे तो मैं जवाब दूंगा। तो उसने कहा तुम मेरे साथ दिल लगाओगे, मेरा नाम पहचानोगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हें इज्जत बख्शूंगा, तुम्हें सरफराज करूंगा। गवाही ये है। तो मेरे अज़ीज़ों, सादा अल्फाज में हमने खुदा से हमेशा अपनी हर ज़रूरत को उसके आगे रखा, अपने हर काम को, अपने हर कलाम को उसके आगे रखा। और हमने अपने इस ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को इज्तिमाई तौर पे दुआ में रखा कि वो हमारी दुआओं को सुने। वो रूहों को, दिलों को और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। उसने हमारी दुआओं को इतने अच्छे तरीके से सुना कि भाई के लिए हमें ये बच्ची दी जो वाकई खुदा में यीशु को अपने काम और कलाम में आगे रखती है। और इसी तरह हमें रियाज की सूरत में उसने हमें बहन के लिए एक ऐसा शख्स दिया जो यीशु को ये समझता है कि यीशु हर काम में है और यीशु ही सब कुछ है। मेरे अज़ीज़ों, ये गवाही मैं इस ऑल्टर पे इसलिए देता हूँ कि इन सारे कामों का आगाज इसी जगह से हुआ, इसी ऑल्टर से हुआ, इसी चर्च से हुआ। और सबसे बड़ी बात पादरी बरकत साहब की दुआओं से हुआ। पादरी बरकत साहब की सिर्फ दुआओं से ही नहीं हुआ बल्कि इनकी कोशिशों से भी हुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, ये वो गवाही है जिसको अगर मैं अपने तक रोकता तो ये शायद ज्यादती नहीं थी, ये गुनाह था। और मैं आज इस मौके पर सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शायद ये ऐसे रंग इख्तियार करेगा और भाई साहब आगे मुझे मौका देंगे या दावत देंगे अपने इस शुक्रगुजारी का। तो मैं आप सबके सामने इस बात की गवाही देता हूँ और इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ और शुक्रगुजारी के साथ अपने पाक परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि वो पादरी बरकत साहब को एक बहुत लंबी उम्र दे, इनको बरकतों से मालामाल करे, इनको और इनके खानदान को सेहतयाबी अता करे और तमाम इब्लीसी ताकतों को और इब्लीसी मंसूबों को इनकी जिंदगी से और इनके खानदान से दूर कर दे।
ये मेरी दुआएं के लिए है। और मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी हम ऑल्टर पे आए या हम चर्च में आए, बिल्कुल दिल की गहराइयों से दुआ करें। मेरा ये मानना है कि हमें वो सारी मुरादें मिली हैं, हर एक को मिलेगी जो सच्चे दिल से मांगे। खुदावंद का जितना भी शुक्र किया जाए वो कम है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्र इसलिए करता हूँ कि जब हम शुरू में जब ये शादी आई है तो मेरे साथ मेरा कुछ गुफ्तगू होती थी कलाम से, वो बहुत ही से बातों करती थी, तो एक अजीब सा रिश्ता था। एक बेटी मेरी और भी हैं, ईर्ष्या मेरी बहुत सी बेटियाँ हैं, उससे साथ ही वही रिश्ता बना जो एक बाप और बेटी का होता है। और मुझे आज भी याद है कि मैंने ये रिश्ता भी तय कर दिया और अपनी टीम को और इनकी अभी को बिल्कुल नहीं पूछा। ठीक है, ये है उन्होंने कहा आपने ये सोच लिया, तो फिर इन्होंने मेरी बात को नहीं टाला और इन्होंने ओके किया। मेरे आज का भी और खुदा का शुक्र करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं। मैंने इनको जब बताया तो ये परेशान हो गए और मैंने कहा कि ये लड़का इसको देख लें, फिर हम बात करेंगे। ये मेरी तरफ से नहीं था। यकीन जानिए इंसान को कुछ नहीं देता, ना दे सकता है। ये खुदावंद का रूह ही है जो खुदावंद के इंसानों के से काम करता है। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ। और हम इसको जब प्रोसेस में थे तो हम हमेशा दुआ करते थे और खुदावंद का शुक्र है कि वो फल हमारे सामने आज है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और मैं भाई एबर्ट से दरख्वास्त करूँगा वो यहाँ आए आज के कलाम के लिए और इस हदिये के लिए शुक्र तो कह रहे हैं वही खड़ूँगा। चलो ठीक है, जो करते हैं बापस्वामी आज के मौके के लिए हम से गुजारिश करते हैं हम इस इबादत को जिसमें हमने बहुत सा कलाम सीखा और काफ़ी देर तक हमारे जहनों में रहे, आए खुदावंद हम ईस्टर की खुशियों को आज हकीकी तौर पर जान पाए। आए खुदावंद आज के इस इबादत को जिसमें तेरे बंदों ने अपनी जेब में से तेरे हुजूर नजराना पेश किया, आए खुदावंद तो उसको कबूल फरमा, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो उस पर तेरी बरकत हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे नाम से, हम सब कुरान में शामिल हों। आए हर बाप तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी से आसमान का कोई होती जाए जमीन पर हमारे दोस्त की और जिस तरह से खुदा को माफ़ करते हैं तो हमारे खुदा को माफ़ कर हमें आज़माइश में पड़े नहीं बल्कि हमारे सच्चा उनके बादशाह तो जलाल हमेशा से। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबके साथ और उसके मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी। थोड़ी सी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो थी हमारी उसे गलती हो गई है तो टेबल कम निकालेंगे तो खाना सर्व होगा, कोशिश करें किसी तरीके से मैनेज करने की, ठीक है। और हम सब खाना खाएंगे फिर हालेलुया के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।